محبوب نگر کی تمام مسلم تنظیموں، جماعت اسلامی، مجلس اتحاد المسلمین، جماعت اہل سنت، جمعیت علماء ہند، ملی محاذ، SIO، جمعیت اہل حدیث و دیگر کا اجلاس منعقد کیا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ کل بروز جمعرات بعد نماز مغرب 6:30 بجے سے بمقام الماس فنکشن ہال محبوب نگر پر ایک شعور بیداری پروگرام بضمن امید پورٹل تمام مساجد کمیٹیوں، درگاہ کمیٹیوں، سجادگان، عیدگاہ کمیٹیوں اور دیگر ملی تنظیموں کے ذمہ داروں کا اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ اس جلسے کو جماعت اسلامی کے سیکریٹریز ڈاکٹر عثمان و فخر الدین اور ریاستی وقف بورڈ کے انسپیکٹرز مخاطب کریں گے۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ وقف جائیدادوں کے اندراج کے لیے مقامی سطح پر کل جماعتی ہیلپ سینٹر وقف کمپلیکس محبوب نگر پر منعقد کیا جائے گا۔ کل کے اجلاس میں تمام مسجد کمیٹی، مدارس، درگاہوں کے ذمہ داران اور دیگر ملی تنظیموں کے ذمہ داران سے شرکت کی گزارش کی گئی ہے۔ اس صحافتی اجلاس کو سید سعادت اللہ حسینی، صدر ٹاؤن مجلس، عبدالعزیز ناظم ضلع جماعت اسلامی محبوب نگر، محمد تقی حسین تقی کنوینر ملی محاذ، محمد الیاس مجاہد سیکریٹری ٹاؤن مجلس و معتمد موتی مسجد، خالد نوید جماعت اسلامی و ویلفیئر پارٹی، عزیز الرحمان ٹاؤن سیکریٹری SIO، محمد عبدالعلیم صدیقی اور دیگر موجود تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبوب نگر کے اضلاع کے تمام مساجد کمیٹیاں اور درگاہ کے متولیان اور سجادگان، ان کے علاوہ جو دینی مدارس کے ذمہ داران اور شلے قبرستان کے ذمہ داران اور جو ہے عاشر خانوں کے ذمہ داران، امام باڑوں کے ذمہ داران اور جتنے ذمہ داران ہیں، کل بعد نماز مغرب الماس فنکشن ہال میں ان تمام لوگوں کا اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ یہ اجلاس تمام جماعتوں کی جانب سے ہے۔ اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام سے بھی گزارش کی جاتی ہے اس پروگرام میں شرکت کریں۔ یہ پروگرام میں مہمان خصوصی ڈاکٹر عثمان صاحب، سیکریٹری جماعت اسلامی تلنگانہ، اس کے علاوہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے انسپیکٹر بھی آ رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک اہم مسئلہ آئے دن چل رہا ہے۔ پارلیمنٹ میں وقف قانون پاس ہونے کے بعد جو ہے اتر پردیش کے اندر سروے کیا گیا تو وہاں پر جو ہے نا 1,00,000 سے زائد اوقافی جو ہے جائیدادیں نشاندہی کی گئی، لیکن وقف بورڈ میں صرف 17,000 تھی۔ تو بہت بڑا اس کا اہم مسئلہ موضوع بنا ہوا ہے۔ تو امید پورٹل کے نام سے تمام انڈیا کے تمام اسٹیٹ وقف بورڈز میں اس کو مساجد کو، درگاہوں کو، خانقاہوں کو اور جو ہے مساجد کے جو دیگر پراپرٹیز ہے، ملکیات وغیرہ، اور اس کے ساتھ جو ہے عاشر خانوں کے جو شیعہ بھائیوں کے جو پراپرٹیز ہے، یہ تمام چیز جو ہے وقف بورڈ میں امید پورٹل کے ذریعے اس کو اپلوڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر اپلوڈ کریں گے تو یہ پراپرٹی جو ہے محفوظ ہونے کے امکانات ہیں، ورنہ اگر اپلوڈ نہیں کریں گے تو یہ پراپرٹیز ادھر جو ہے حکومت کے قبضے میں جانے کا اندیشہ ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے قوم کا اور جو ہے کام ہے، اس میں تمام لوگ آگے بڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور خاص کر جو مساجد کمیٹی کے لوگ ہیں وہ لوگ یہاں پر فوری
जो है बाद मगरिब के जो है कल तशरीफ़ लाकर इस इजलास से को अवेयरनेस प्रोग्राम को जो है सुने और उसके बाद से जो है हमारे महबूब नगर ज़िले की वक्फ ऑफिस जो है वक्फ कॉम्प्लेक्स में बड़ा वसी तर हाल है। इंशाल्लाह महबूब नगर के कायदीन जमात इस्लामी हो, मजलिस हो और दीगर जमातों के जो है मिली महाज हो, ये तमाम लोग का सोच ये है कि यहाँ पर जो है कंप्यूटर कंप्यूटर रखकर और तमाम लोगों को ट्रेनिंग दे के हमारे नौजवानों को इस उम्मीद पोर्टल के फॉर्म्स को अपलोड करने का काम करने का जो है एक मंसूबा बनाए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हम लोग इंशाल्लाह ये 5 दिसंबर को आखिरी तारीख है, अगर हम पूरे मिलकर ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये 1 हफ्ते में हमारा काम महबूब नगर ज़िले का मुकम्मिल होगा। लिहाजा मैं दर्दमंदाना अपील करता हूँ मसाजिद कमेटी, दरगाह कमेटियों से, सज्जागान से और जो है और छिल्ले के जो जिम्मेदारान हैं, जो महबूब सुबहानी के नाम से कई छिल्ले हैं, उसको भी वक्फ बोर्ड में रिकॉर्ड में मतलब रखना ऐड करना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा तमाम से ख्वाहिश करता हूँ कि कल बाद नमाज मगरिब जो है अलमास फंक्शन हॉल में अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है। आप तमाम हजरात से मस्जिद कमेटियों के जिम्मेदारान से शिरकत की ख्वाहिश करता हूँ। बरकातहू। जैसा कि हमारे कायद मजलिस से सादुल्लाह हुसैनी ने बताया कि उम्मीद पोर्टल में अवाफी जायदादों का इंदराज काफ़ी अहमियत का हामिल है। अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि उम्मीद पोर्टल में कौन सी जायदादें इंदराज दर्ज की जाएं। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि सिर्फ वो जायदादें जो वक्फ में रजिस्टर्ड हैं वही उनका दर्ज किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मसाजिद हैं, जो निशान मुबारक है महबूब सुबहानी के, आशुर खाने भी हैं और कई मदरसे भी हैं, दीनी मदरसे, ये तमाम भी वक्फ के तहत आते हैं, क्योंकि मस्जिद तामीर होती है तो आवाम के लिए वक्फ की जाती है। मदरसा भी जब तामीर होता है तो उसकी इंतजामी कमेटी होती है, लेकिन वो भी एक वक्फ के नज़रिए से चलती है। लिहाजा ये ज़रूरी है कि जो नई मसाजिद हैं जो वक्फ के तहत रजिस्टर नहीं है, उन मसाजिद को भी उम्मीद पोर्टल में दर्ज करना ज़रूरी है और उन दरसगाहों को भी दर्ज करना ज़रूरी है जो खानगी कमेटियों के तहत चल रहे हैं। उसके अलावा मुतवल्लियान दरगाह, ये लोग काफ़ी इस्तराब की कैफियत में हैं। ये लोग ये समझ रहे हैं कि उम्मीद पोर्टल में उनकी दरगाह की तफसीलात दर्ज कराने से उनके हुकूक सल्ब हो जाएंगे, यानी कि वो दरगाह के इंतजाम हुकूमत में चले जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ये देखना है कि कितनी जायदादें वक्त में हुकूमत में दर्ज है उसी के लिए उम्मीद पोर्टल में इंदराज है। किसी के कोई हुकूक सल्ब नहीं होने वाले इसमें। लिहाजा सज्जादगान मुतवल्लियान से मैं अपील करता हूँ कि आप भी खुले जहन से कल मुनक़िद होने वाले शऊर बेदारी प्रोग्राम में शिरकत फरमाएं, ताकि आपकी भी जो सवाल का जवाब मिल सके, आपको वजाहत हो सके। लिहाजा कल जो 13 नवंबर को कल यानी बरोज़ जुमेरात जो शऊर बेदारी प्रोग्राम जमात इस्लामी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मिली महाज और जो है सो रियासती वक्फ बोर्ड और दीगर तमाम मकामी फ़िक्र के जिम्मेदारों की जानिब से मुनक़िद किया जा रहा है, इसमें ज़रूर शिरकत फरमाएँ। और उम्मीद पोर्टल के जो काम है वो सिर्फ एक वक्फ बोर्ड नहीं कर सकता। हमारे महबूब नगर में इतनी जायदादें हैं, अगर वक्फ बोर्ड अकेला करने जाएगा तो वो मुमकिन नहीं है जो मुद्दत जो है मुद्दत में उनको अपलोड कर सके। लिहाजा ये शहर के कायदीन ने और जो सो धमदान कौम ने सोचा है कि एक कंप्यूटर्स हायर किए जाएँ, नौजवानों को हायर किया जाए और जैसे वक्फ बोर्ड के साथ हम भी शाना बाशाना इस काम को अंजाम दें, तभी जाकर ये मामला कामयाबी के साथ पूरा हो सकता है और हमारी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। लिहाजा मैं तमाम से अपील करता हूँ कि कल बाद नमाज मगरिब अलमास फंक्शन ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। अभी जैसे दीगर कायदीन ने जिक्र किया कि कल महबूब नगर के अलमास फंक्शन हॉल में बाद मगरिब एक अहम इजलास मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें हम तमाम मिली तंजीमें, चाहे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हो, जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमा हिंद हो, अहले हदीस हो, जमीयत अहले हदीस हो, या फिर सुन्नी उलमा बोर्ड हो, अहले सुन्नत जमात कमेटी हो, तमाम कमेटीज़ की जानिब से कल ये प्रोग्राम रखा गया है। इस प्रोग्राम का मकसद जो उम्मीद पोर्टल जो हुकूमत हिंद की तरफ से शुरू किया गया है, जिसमें हमारे मुसलमानों से वाबस्ता तमाम जायदादें, चाहे मसाजिद हों, मदरसे हों, छिल्ले हों, दरगाहें हों, क़ब्रिस्तान हों, आशुरखाने हों,
ये सभी को इसमें रजिस्टर करना ज़रूरी है। अगर ना करें तो ये हुकूमत हिंद के नज़दीक ये होगा कि वो मुस्लिम जायदाद या रिलीजियस प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी, एक आम प्रॉपर्टी होगी और इसको हुकूमत इसके साथ कुछ भी कर सकती है। और महबूब नगर में अभी हमने मालूम किया कि डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड के अंदर जैसे महबूब नगर प्रॉपर में तकरीबन 150 मसाजिद हैं, जिसमें से 10 से 15 मसाजिद ही जो है वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं, बाकी 130-35 मसाजिद का कहीं जिक्र नहीं है। तो इन मसाजिद का, मदारिस का, ईदगाहों का, दरगाह शरीफ के जितने भी हैं, इन सब का इंदराज इसमें होना ज़रूरी है ताकि इनकी हिफाजत हो सके और ये बाकायदा क़ानूनी तौर पर हुकूमत के पास रजिस्टर हो सके। तो कल के इजलास में इंशाल्लाह जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनाब मिली उमूर जनाब फ़खरुद्दीन साहब और डॉक्टर उस्मान साहब सेक्रेटरी APCR और स्टेट वक्फ बोर्ड के दीगर कायदीन इंस्पेक्टर्स वगैरह आएंगे, तो उसमें इसकी अहमियत, अफादियत और इसको किस तरह फिलअप किया जाए ये हमको बताएंगे इंशाल्लाह। जैसे बताया गया महबूब नगर में भी हमने तमाम जमातों ने मिलकर जो है एक हेल्प डेस्क, एक सेंटर यहाँ पे कायम करने का फैसला किया है। उसके ज़रिए से किस तरह होगा इंशाल्लाह कल आपको बताया गया। तो तमाम वाबिस्तगान से हमारी अपील है कि कल के इजलास में ज़रूर शरीक हों और इस प्रोग्राम को 5 दिसंबर के अंदर कामयाब करने की कोशिश करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरियान महबूब नगर में इंशाअल्लाह कल 13 नवंबर बरोज़ जुमेरात बाद नमाज मगरिब तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारान और ख़बरस्तान कमेटियाँ और जो है ना मुतवल्लिगान व सज्जादागान और जो महबूब सुबानी छिल्ले के ज़िम्मेदारान हैं, सबका एक जो है ना तरबियती जो है ना यहाँ पर कल एक मुशावरती इजलास रखा गया है, जिसका मकसद जो मरकज़ी हुकूमत की जानिब से उम्मीद पोर्टल जो क़ायम किया गया है, जिसमें 5 दिसंबर से पहले तमाम मसाजिद के जो है ना उसमें अपलोड करना ज़रूरी है। और तकरीबन मसाजिद कमेटियाँ वालों गुज़िश्ता अल्हम्दुलिल्लाह हम 1 हफ़्ते से मुसलसिल जद्दोजहद कर रहे हैं कि किस तरीके से इस काम को तकमील किया जाए, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास इतना सिस्टम नहीं है कि वो खुद काम कर सके। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे ज़िम्मेदारान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जमात इस्लामी और मिली महाज और भी जमात अहले हदीस के ज़िम्मेदारों ने ये सोचा कि क्यों ना हम जो है ना इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे खुद कंप्यूटर्स वहाँ पर जो है ना वक्फ कॉम्प्लेक्स में रखकर और हमारे जो कारकुनान हैं इंशाल्लाह उसको जो है ना वक्फ बोर्ड के तहत ट्रेनिंग लेकर इंशाल्लाह वो काम को जो है ना इंशाल्लाह हम जो है ना अंजाम देंगे। तो मैं तमाम हमारे मसाजिद कमेटियों के ज़िम्मेदारों से मेरी पुरज़ोर अपील है कि कल बाद नमाज मगरिब आप लोग यहाँ पर अलमास फंक्शन हॉल पे तशरीफ़ लाएँ, ताकि इस जो गलत फहमियों का अज़ला है इंशाल्लाह उसका हमारे जो मेहमान मुकर्रर आ रहे हैं इंशाल्लाह वो डायरेक्ट आपसे जो है ना मुखातिब होंगे। आपसे जो कुछ भी आपके जो है ना डाउट्स है इंशाल्लाह वो पूरे जो है ना क्लैरिफाई होंगे, क्योंकि वक्त का जो कानून बना हुआ है इसमें उम्मीद पोर्टल में अपने मसाजिद का, अपने ख़बरस्तानों का, अपने दरगाहों का, अपने चिल्लों का, आशुर खानों का रजिस्ट्रेशन कराना निहायती ज़रूरी है। अगर ना रजिस्टर्ड कराए तो वो जो है ना वक्त जो है ना गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा। लिहाजा हम दर्दमंदान मिल्लत हम जिस जो बेड़ा उठाए हैं गुज़िश्ता 1 हफ़्ते से हम जो है ना इस पर काम कर रहे हैं। लिहाजा आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि ज़रूर ज़रूर कल बाद नमाज मगरिब आप जो है ना अलमास फंक्शन हॉल पर तशरीफ़ लाएँ और एक मुशावरती इजलास को कामयाब बनाएँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अजीज़ुर रहमान है, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का मैं महबूब नगर सिटी सेक्रेटरी हूँ। ये जो वफ़ उम्मीद पोर्टल का जो अपन शुरू करे हैं रजिस्ट्रेशन करने का, तो इसमें मैं पूरे मस्जिद के ज़िम्मेदारान और जो क़ब्रस्तान के ज़िम्मेदारान हैं और जो दरगाह के ज़िम्मेदारान हैं, आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि कल के एक अवेयरनेस प्रोग्राम में आएँ और उसमें आप लोग आपके क्वेश्चंस वगैरह बोलकर उसके अंदर जो है ना सवालात कर आपके जो क्वेश्चंस डाउट्स है वो क्लियर करें। और मैं पूरे नौजवानों से, महबूब नगर के नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि अपने अपने मस्जिद की कमिटीज़ का आप लोग साथ दें। अब ये जो दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, आप सब इससे वाकिफ़ है टेक्नोलॉजी से, तो आप सब वॉलंटरीली मस्जिद के कमिटीज़ का साथ दें और इस वफ़ पोर्टल में जो है ना वफ़ के प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर करके इसकी हिफाजत करने में वक्त लगाएं। जज़ाकल्लाह खैर।